वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है स्वदेशी फर्स्ट एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बाय अंशु सक्सेना। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Do you know how stupid you are? You're giving your money to someone who doesn't support you and you expect yourself to become a superpower. How is it that you can be so stupid that you waste all your money on purchasing foreign goods and then you complain that Indian economy is sinking, government is not doing good, unemployment, etc., etc. On one side, our Prime Minister is talking about India to become a $5 trillion economy in another 5 years. But on the other side, we are wasting our money on feeding foreign enemies who are using the same money to destroy our country. What a disgrace. भारत का लक्ष्य है अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। It's a great vision, but I don't agree with our Prime Minister. We can never become a $5 trillion economy. You know why? Because of you and me. We never support our Indian products. We never support our Indian businesses. Either you end up fighting or you end up blaming the government. You never think of a solution. Actually, there is no need to crack your heads to reinvent a solution. It was already there. Just that we never gave a damn to it. Now, let's revisit that idea, Swadeshi first. It's not simply about boycotting foreign-made products. You need not suffocate yourself with unemployment, poverty, etc. Just follow these steps which I'm going to take you through now. Let me start with a simple example. Suppose you went to buy a mug and you came across 2 products, one from China worth 20 rupees, another from India worth 25 rupees. You wouldn't bat an eye and go for a cheaper Chinese product. And you celebrate that you saved 5 rupees. But do you know how much it affects the nation and in turn you? When you buy foreign-made goods, naturally the money goes out in dollars to that country, which reduces our currency value. Reduced currency value means high price for the imported goods like petrol and others. Not only that, when so much money is spent on importing goods, government is compelled to raise taxes to level out the money went outside the country. These taxes perhaps will be more than your 5 rupees. I just want to say that even if you have to pay a bit extra for Indian products, please do it. Because it will not only boost our GDP, but also it will get back to you in the form of better healthcare. You are helping a father to send his son or daughter to school. You are strengthening the economy. And most importantly, you are boosting the Indian companies to produce better quality products. We have immense talent in our country. We have given numerous CEOs and scientists to the world. But all of them have chosen to work for foreign companies. Why? Number 1, there is not enough political will to support Indian industries. Number 2, we, the people, who never support the products manufactured in India. India is still very weak when it comes to innovation and startup culture. Even after 70 years of independence, 60% of the population whose livelihood comes from agriculture is still using outdated and ineffective pseudoscientific Western methods. There are thousands of such problems which needs innovative solutions that can become an industry by itself. But our education system is so pathetic and students are fed with irrelevant information which they can't apply in the real world and find out solutions for these issues. The lack of political will and pathetic education system is pulling us down from decades. Though things are changing recently, government is encouraging innovation and startup culture and doing its part by providing the platform. We as consumers also have a responsibility to support Swadeshi companies. I know that we still lag in many areas, but the time has come to work with what we have. Our Indian startups should get a chance. Take their services, buy their products. It will boost our local startups and will also boost the economic growth of our country. The manufacturers of our country focus on the quality of their products. They don't manufacture the cheap quality China products. But you always wanted cheap stuff. Everything should come to you for free, right? When the manufacturers don't receive your support, how can they survive? So they reduce the quality of their products to avoid suffering any losses in the market. Now you may say that Chinese products are cheap and affordable. Yes, it's cheap. Do you know why? Tech employees and factory workers are working for at least 12 hours daily in China. There is no work-life balance. People are committing suicides due to work-related pressure. By making people forcefully work,
China can afford to reduce the price and bring these cheap products to the market. This is a strategy to kill our local businesses. You don't understand. But fortunately, this doesn't happen in India. India is not a communist-led government like China. We have strict labor laws where the companies have to abide by 8 to 9 working hours, thereby protecting our labor and their rights. Whereas China has horrible labor laws, which are mostly exploitative in nature. Are you clear about this Swadeshi First initiative that I'm talking about? I'm not asking you to boycott any country. I'm asking you to support our own country. Your first preference, even if it's a bit costlier, shall be Indian. This will boost our economy in a huge way because it affects the manufacturer's production, which in turn generates employment. And when more companies manufacture the same product, as competition plays a role, the price will stabilize naturally. This will help the government to come up with more manufacturing friendly policies, which will have a snowball effect. So what you buy will make a huge impact. But whenever an initiative like this is proposed, either by government or other entities, it has become a habit to ridicule and discard it as impractical. We need to get out of this mentality and work towards practical solutions. Last time when we united for a Swadeshi movement in 1905, it was against a direct invading force. But now we are dealing with a predatory market. The Swadeshi First shouldn't be a short-lived wave in a reactionary mode, but it should be led as a movement. Buying Swadeshi products should become a habit. Swadeshi means belonging to one's own nation. And this Swadeshi movement is an economic strategy that appeals to Indian masses to use only goods produced in India instead of those being imported from foreign countries. Right now, the dependency is such we can't find an overnight alternative for so many foreign products. But whenever you out to buy anything, please prefer our Indian products over others. Make it a habit to check the manufacturer from now. Because of Corona crisis, thousands of small and medium manufacturing units have been shut down, and we don't know whether they will return. There are many suffering the grave losses. They need your support. It's in your hands to revive them. Swadeshi First initiative was announced on 31st May 2020 by Anshul Saxena, aiming at promoting the business for Indian manufacturers. To our surprise, a long list of manufacturers reached out to us. The small and medium scale enterprises associated with Swadeshi First initiative will be promoted on our social media platforms. Many teachers and academicians have been associated with us, taking this initiative to their students and in turn to their families. String is committed to this initiative in all its capacity. For a detailed information, please visit the social media handles of Anshul Saxena. Swadeshi should always be the first priority. Namaskaram. बात करें अगर आज इस टॉपिक पे, तो ये टॉपिक जो है इतना ज्यादा इस पे डिस्कस करने को है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो है हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग वाकई जो है सस्ते के चक्कर में जो है अपने मुल्क की चीजों को पीछे कर देते हैं, और इसमें और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स आते हैं। वेल, मौजम की बात से मेरे जहन में एक पॉइंट आया कि गवर्नमेंट को हम लोग वहां पर ब्लेम करते हैं जहां पर गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है लोकल लोगों के लिए, लेकिन जहां पर लोकल लोगों के लिए काफी ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं, उनको पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वहां पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली बनती है। क्योंकि मैं जब भी बात करती हूँ तो बहुत हद तक मेरे जहन में पाकिस्तान भी होता है कि अगर पाकिस्तान की भी हम लोग बात करें तो पाकिस्तान जो टोटली हम कहेंगे कि चाइना पर ही डिपेंड करता है, चाइना या जो दूसरे देशों की जो है कंपनी जो है, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें नजर आएंगी। बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर बात कीजिए तो आपको सिर्फ जो ज्यादा एक्सपोर्ट है वो आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है उसमें नजर आएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें जिसमें हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, तो वो चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज या यूएस पर जो है डिपेंड करता है ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं अब आम व्यक्ति की बात करना चाहूंगी। वैसे तो जितनी भी बातें इसमें अंशुल जी ने, अंशुल नाम था उनका, उन्होंने जितनी भी बातें डिस्कस की, हम काफी मरतबा अपनी वीडियोस में ये चीजें डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। आपको एक टाइम लगता है, चाइना
को भी इस हद तक मतलब पूरी दुनिया में एक डोमिनेंस करने के लिए 25-30 साल लगे हैं, और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ही लेग पुलिंग करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में उसका फायदा होगा। अब एक आम व्यक्ति की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो ये कि आप वाकई में अपने लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट करें। देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना ने ना पूरी दुनिया की जो लोकल मार्केट्स हैं उसे तबाह करने में, खत्म करने में एक टाइम लगाया है, एक स्ट्रेटेजी लगाई है, और उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया भी है। अब जैसे हम बात करें, हम बाहर जाते हैं, हमने कोई चीज लेनी हो, जैसे अगर हमने फ्राई पैन ही लेना है, हम अगर लोकल वो पूछेंगे तो वो लोकल हमें मिलेगा 400 रुपए का। अगर हम चाइना का पूछते हैं वो हमें मिल जाएगा 250-300 रुपए का। लेकिन हम क्या करते हैं कि पैसों को देखते हुए हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं, जबकि लोकल जो चीज बनती है वो ज्यादा अच्छी होती है, और उसकी जो अगर लाइफ की बात करें वो ज्यादा लंबे अरसे तक चलती है। हम लोग क्या करते हैं, 1-2 मरतबा इस्तेमाल करना, उसके बाद किसने इस्तेमाल करनी है चीज। लेकिन मैं ये बात सोचती हूँ वाकई में अगर 5-10 रुपए का फर्क होता है तो हम लोग को अपनी लोकल चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। और एक चीज जो हमारे ना आम लोगों के ज़हन में होती है, हम लोगों ने इंपोर्टेड चीज इस्तेमाल की, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। नहीं हम लोग तो लोकल इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो चीजें इतनी अच्छी नहीं होती। मैं तो अब जाता हूँ ना, मार्केट जाता हूँ, जैसे कभी कोई कपड़े लेने हो तो उस पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो मैं लाके इन्हें दिखाता हूँ, ये बड़ी खुशी होती है कि मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है इस पे। तो नो डाउट आप जब अपनी लोकल प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके जीडीपी में इजाफा होगा, आपके मुल्क की इकोनॉमी जो है उसमें जो है बेहतरी आएगी। नो डाउट किसी भी मुल्क से आप चीज खरीदेंगे, अब पैसा तो आपने देना ही देना है उनका, तो वो क्या होगा, वो फिर आप पे डिफरेंट तरीकों से गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाएगी, यानी कि इसी तरह के हरबे आजमाएगी कि भाई किसी ना किसी तरह चीजों को मेंटेन किया जा सके। तो सबसे पहले अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, जो चीजें यहाँ पर बन रही हैं वो इस्तेमाल करें। हाँ, अगर उस आपको नहीं मिलती तो फिर उसका अल्टरनेटिव जो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया गया फिर आप वो इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज, सॉरी बोलो, नहीं मुझे लगा नहीं आप कर ले। यहाँ पर एक बात बोलना चाह रही थी कि अंशु ने जैसे बीच में बात की, हमारे बीच मतलब एक प्रॉब्लम ये भी है आम लोगों की कि हम लोग को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम लोग को यही नहीं पता कि अगर हम अपनी लोकल चीजों को खरीदते हैं तो उसका हमारी कंट्री की जीडीपी पर क्या असर होगा, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या इन रिटर्न हम लोगों को क्या फायदा होगा। मतलब अगर हम इसी तरह अगर दूसरे लोगों को देखें, अभी जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज को देखें या ऐसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर खुद उनकी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, वो ऑब्वियसली अपनी चीजें खुद इस्तेमाल करते होंगे, वो अपने मुल्क की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते होंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अच्छा, बीच में 2 चीजें डिस्कस की उन्होंने, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ठीक है, वो भी वाकई में जो आपकी लीडरशिप है वो उसका विजन ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आता है कि हम कैसे सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो एजुकेशन की उन्होंने बात की, मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से, किस रेफरेंस से उन्होंने बात की है कि कौन सी ऐसी इररेलेवेंट चीजें हैं जो बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जहां तक हम लोगों को लगता है, हम लोगों को तो इंडिया का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं हम लोग को लगता है कि वो बहुत ही एडवांस स्टडीज करवाई जाती हैं। अब इन्होंने किस चीज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। बिल्कुल। और दूसरा जो है मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट भी चाहती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में तो काफी ज्यादा फैसिलिटीज हैं, काफी ज्यादा इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं डिफरेंट कंपनीज के जो खाली पाकिस्तान में असम्बलिंग करवा रही हैं, तो उन्हें जो है कहे कि ऐसी पॉलिसी उनके ऊपर लेकर आए कि भाई नहीं, आप अपना पूरे का पूरा प्लांट यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे ही सब कुछ बनाए, यहीं पे असम्बलिंग करें और बेचें, उससे हम लोकल लोगों को भी फायदा हो, गवर्नमेंट को भी फायदा हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है वो है मेकअप। तो मेकअप का जितना भी वो सामान की बात की जाए वो बाहर से ही आता है, यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता। मौसम ने इतना मेकअप की बात कर दी। बट अच्छा, यहाँ पर एक और बात, जैसे कि मौसम अक्सर ये बात करता है कि हमारे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टैलेंट की कमी है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन ये कि जो अच्छे दिमाग हैं, जो कि टैलेंटेड हैं बहुत ज्यादा, उनको क्या होता है कि उनको बाहर के मुल्कों में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और इस वीडियो में भी यही चीज डिस्कस की गई कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीईओ हैं आज के टाइम पर, रिनाउंड मैं कहूँगी कि कंपनीज के, लेकिन क्या है कि उन्होंने जो एक उन्होंने हम कहेंगे कि जो उसकी रीजन बताई कि पॉलिटिकल विल नहीं है कि इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें या हम लोग खुद भी नहीं सपोर्ट करते, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। असल में बात फिर वही आ जाती है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क का कोई बंदा देखते हैं ना, किसी अच्छी पोस्ट पे बैठ गया, अच्छे रैंक पे बैठ गया, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसका नुकसान कितना ज्यादा हमें हो रहा है। हमें तो ये खुशी होती है कि भाई हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। तो हाँ, किस तरीके से हमारा बनाया गया। अब क्या है कि हम जो है वो कहते हैं बस वो बन गए, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क में बात करें, हम अपने मुल्क में कुछ करने का सोचते ही नहीं है। अब मैं समटाइम्स इनसे बात करता हूँ, क्या हमारे लोग इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे अपनी रेलवे बना सके, अपने जहाज बना सके, अपनी चीजें बना सके? हर चीज के लिए तो हम दूसरे मुल्कों पे डिपेंड हैं। हम काबिल हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, चीजें नहीं है जहाँ पे लोग अपने जो है वो एक टैलेंट को एक्सप्रेस करें। अगर वो कोई बंदा अपना टैलेंट दिखा ही देता है, कोई ऐसी चीज बना ही देता है, तो बंदा जो है 2-4 दिन तो वो सुर्खियों में आता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, वो कुछ पता नहीं होता कि भाई वो बंदा जो है अब वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, छोड़ गया, क्या है सीन, कुछ पता नहीं होता। पाकिस्तान की अगर मैं स्पेशली बात करूँ ना, यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि यहाँ पर मुझे कोई प्लानिंग ही नहीं नजर आती। लीडर्स मतलब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अच्छी लीडरशिप उस तरीके से कभी भी नहीं मिली, वरना फिर वही बात है, टैलेंट की कमी नहीं है। अभी अगर रिसेंटली याद करें आप, तो एक शख्स थे, आई थिंक वो इधर केपीके वाली साइड से, उन्होंने पानी से गाड़ी चला ली थी। हाँ बिल्कुल, वो भी था। और उसके अलावा मौजूद एक अभी जैसे पैंडेमिक में जब व्हाट्सएप को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आई थिंक कराची का एक लड़का था जिसने व्हाट्सएप के मतलब ऑल्टरनेटिव पर एक ऐप बनाई, लेकिन कहाँ पर है वो लोग। फिर उसके बाद सर्दियों में जो है गैस का जो है बहुत ज्यादा मसला होता है पाकिस्तान में। तो एक क्लिप मैंने देखा था, उसमें उस बंदे ने क्या किया था, वो प्रेशर वाला जो होता है ना, जो हवा का प्रेशर बनाता है, उसके साथ और उसे जो है पेट्रोल में एक पाइप डाल के दूसरा पाइप बाहर निकाला और उसे गैस तैयार की हुई थी। यही तो बोलती हूँ, अब इन लोगों को गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अभी गवर्नमेंट अगर अपनी जगह पर काम करे, तो यही चीज हम लोग कह रहे थे कि फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि वो भी हाथ से हाथ मिलाए। और इसके बाद हम लेबर लॉ की बात करेंगे। चाइना में मुझे तो लगता है, पता नहीं क्यों चाइना मुझे बहुत जालिम लगता है। मुझे चाइना के लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट मैं यार आप ये देखें अपने लोगों के साथ भी वो कितना जुल्म कर रहे हैं, 12-12 घंटे जो है उनसे ड्यूटी ले रहा है और कोई लेबर लॉ नहीं है, कोई उनका राइट नहीं है। जो मैं तो थैंक यू बोल दूंगी, एटलीस्ट चलो हमारे मुल्कों में ना, चाहे जो मर्जी मसले में चले, यहाँ पर लेबर भी उठकर खड़ा रहेगा, क्या मसला नहीं करना भाई, हमने जॉब छोड़ दी, नहीं आना हमने नौकरी पे, लो तुम्हारी जॉब। मतलब इस तरह का थैंक गॉड इस तरह की फ्रीडम है। अदरवाइज मुझे तो लगता है वहां पर तो शायद रोबोट्स वो लोग बना रहे हैं। फिर और जैसे हम लोगों को, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो खान सर की, जिसमें वो चिप ऐसी बना रहे हैं, मतलब मुझे पता नहीं, आपका डीएनए चेंज करने के लिए इतनी खौफनाक मुझे उनकी प्लानिंग और उनका ब्रेन लगता है ना, मतलब मुझे अजीब लगता है। एनीवे गाइस, अब अगेन इस तरह की वीडियोस इसीलिए बनती हैं ताकि लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आए और हमारी भी कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और अब हमें इजाजत, क्या सोचना आपको इस टॉपिक पर जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्वदेशी कंपनियों के बारे में। और हमें अपनी दुआ में याद, हमारे वीडियो से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।